सभासदों, माननीय सभापति जी, oath or affirmation. मध्य प्रदेश श्रीमती संपत्तिया उके। मैं संपत्तिया उइके जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। Papers to be laid on the table. Shri Sadadan Gowda. Shri Mukhtar Abbas Naqvi. Sir, on behalf of my colleague Shri Rao Indrajit Singh, I rise to lay on the table of the House the paper listed against his name at serial number 2 in today's revised list of the business. Shri Rajiv Pratap Rudy. Chairman Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Dr. Jitendra Singh. Chairman Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name against serial number 4 in today's revised list of business. Thank you, Upendra Kushwaha. महोदय, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। श्रीमती कृष्णा राज। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम 7 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूं। रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट श्री दिलीप भाई पांड्या। Thank you, Deputy Chairman, sir. I beg to lay on the table a copy in English and Hindi of the 23rd report of the Joint Committee on Office of Profit, 16th Lok Sabha. Thank you very much. Now, statement of the Department Later Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas, Sri Vijay Sai Reddy. Okay, Sri Mahant Sambhavadi Tundia. महोदय, मैं आज के आदेश पत्र में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध अंतिम की गई कार्रवाई विवरण की प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। Now, report of the Department Later Parliamentary Standing Committee on Railways, Sri Motilal Vora. Naye, Sri Ranvijay Singh Judev. Sir, I beg to lay a copy of each of the 14th and 15th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Railways as listed against my name in today's list of business. Thank you. Thank you. Statement of the Department Later Parliamentary Standing Committee on Railways, Sri Motilal Vora. No, Sri Ranvijay Singh Judev. Sir, I beg to lay the statement Hindi and English versions of the Standing Committee on Railways as listed against my name in today's list of business. Thank you. Now, statement by Minister C.P. Goyal. Sir, I rise to lay on the table of the House a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 23rd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Energy. On the replies to the recommendations contained in the 15th report on examination of demands for grants 2016-17. Let the minister complete. The Ministry of Power let the minister my name of let the revised list let the minister finish reading. Sit down. Okay. All right. Now. Sir, 187 आप निकाल लें। 187. इस सदन को
विशेषाधिकार का अधिकार दिया गया, इस मारे दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में जजों को जैसे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का विशेषाधिकार दिया गया, वैसे ही कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का विशेषाधिकार इस चेयर को दिया गया, समिति बनी। लेकिन निरंतर पीठ का जब दिल बड़ा होता है तो कहीं न कहीं सदन का दिल छोटा होने लगता है। निरंतर एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज काटजू जी थे, उन्होंने सदन के लिए, उस पीठ के लिए तमाम लिखा। आज दैनिक जागरण में एक मिस्टर कोई के.एन. वर्मा हैं, उन्होंने एक लेख लिखा और उन्होंने इस हाउस को कंडेम करा और उन्होंने कहा ये इलेक्टेड हाउस नहीं है, ये चोरों का दरवाज़ा है, इस हाउस को राइट नहीं होना चाहिए। जैसे लोकसभा को आर्टिकल 110 में फाइनेंशियल अधिकार है, वैसे सारे अधिकार लोकसभा को होना चाहिए, राज्यसभा को नहीं होने। इसके पहले तमाम मीडिया ने हमने कुछ कहा था, उस पर निकाला। श्रीमान, मैं इस मारे कह रहा हूँ, अगर इस पीठ को चैलेंज किया गया, अगर ये कहा गया पीठ का कोई अधिकारी नहीं, मुझे याद है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तमाम ऐसे केसेस जो जब विधानसभा ने कंटेम्प्ट किया, लोगों को जेल भेजा, कोर्ट ने जब बेल दे दी तो कोर्ट को हाजिर कर लिया, जज को उन्होंने विधानसभा में हाजिर कर लिया। ये अधिकार है। अगर इस सदन का इसी तरह अपमान होता रहा और पीठ ने विशेषज्ञ, क्योंकि हम लोग जो भी विशेषाधिकार देते हैं आज तक उन पर निर्णय नहीं हुआ। अगर इस पीठ का दिल बड़ा लॉ मिनिस्टर साहब, लेकिन लॉ मिनिस्टर no. अगर हम जज Let me say, तो हमें कंटेम्प्ट हो जाएगा। He is on a point of order, therefore I have to react. So मेरे को पूरा समझ में आया। अभी आप बैठिए। I am giving you a ruling. That is the point. Is if you if Naresh Agarwal ji or any other member, let me give a ruling on that. This is a very serious matter. That is what I am saying. No, this is not a matter of an individual. That is what I am saying. I am on the matter of the entire house. That is what I am saying. That's what I am saying. But there is no. No. See, no need of discussion on this. Let me. यहाँ लॉ मिनिस्टर साहब हुए, माननीय लॉ मंत्री। It's not a matter for the law minister. मैं ये कहना चाहता हूँ, It is not a matter for law minister. है क्यों नहीं सर? या बोलिए। ये अगर इस सदन को इस तरह से बेकार कर दिया जाएगा, हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो इस सदन का औचित्य क्या है? मतलब क्या है रहने से? मैंने अभी बताया था, आपके सारे लोग जो जानकार हैं जानते हैं केशव सिंह केस उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और ये भी जानते हैं कि विधानसभा ने क्या किया था। No discussion on this, Mr. No. जानते हैं किस तरह से। I will give the ruling. It's a matter of point of order. I will give the ruling. How can there be a discussion on a matter of point of order? किसी privilege पे कभी कोई कार्रवाई होती नहीं है। It cannot be. No. What is? No. I am not allowing. See, there should be some rule. No, I am not allowing, because what is raised is a matter of point of order. Well, Naresh Agarwal raised a point of order. On a point of order, there cannot be a discussion. It is for the chair to give a ruling. I will give the ruling. I have to go by the ruling. See, if it was some other notice, I would have allowed. But it's a point of order he raised. For a point of order, I cannot allow discussion. Now, I am giving you ruling. No, I cannot allow that. On a point of order, if I start allowing discussion, every day there will be time only for that. So I cannot do that. So, but I am giving a ruling. See, you raised a point of order. But I understand that it's a privilege matter. You say the Rajya Sabha has been denigrated, according to you, by some journalist or someone who wrote an article in a particular newspaper. If you or any other member think that there is a breach of privilege, he or she can give a notice of privilege, that will be considered. That notice will be considered. Yeah, that is all. आप दीजिए। वो तो हमको मालूम है, ये तो नियम हमको मालूम है और प्रोसीजर मालूम है, लेकिन प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन या कमेटी द्वारा कोई निर्णय न लेना वो हमारे हाउस को कमजोर करना। ये नहीं है। आपने कह दिया नोटिस दे तो हमें मालूम है,
187 में हमें नोटिस देना दे पड़ेगा। दो। नोटिस आप You are- देखेंगे। The committee will examine it. आप कार्रवाई शुरू करेंगे। The committee will examine it to take. देखते नहीं है। ये सदन की प्रिविलेज है, सदन की गरिमा गिरती जा रही। हम हमारे चेयर को जैसे हनुमान जी No, को in जैसे in हनुमान that जी case को you raise in that form. जैसे हनुमान जी को ताकत नहीं आप बताई ठीक गई है। थी, तब लंका ऐसा पे है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में नहीं raise करना है। No, if that is so, no, Naresh ji, when you raised a point of order, I gave a ruling for that. If you raise in some other form, I have no problem. I have no problem. Now, not on that subject. You can give privilege motion. No. Deputy Chairman, If all of you, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का उल्लंघन What is करके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का उल्लंघन करके जो बेशकीमती जमीन वर्ल्ड हेरिटेज के लिए थी छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल जो वहां पर मंत्री हैं उन्होंने और उनकी पत्नी ने No, that you give 0 hour notice. अरबों रुपए I- का घोटाला yesterday itself किया I है। said, Mr. ये Punia, सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग I said ईमानदारी की बात करते this is a matter for 0 hour notice. Both of you can एक मंत्री ने अरबों रुपए की give 0 hour. Sir, this is completely state issue. Or how can we discuss the state issue here? Completely the state of the Chhattisgarh. और नाम भी लिया उसको स्पेल करिए जो इन्होंने नाम भी लिया है. Please spell the name also. No, if any name is taken, that will be expelled. In any case, Mr. Punia and Pramod Tiwari, your 267 notice कब्जा किया है is not allowed. It is not allowed. How are you coming to that? No. I have Punia, Mr. Punia, you give some other notice. 267 is not allowed. Yeah. अगर आप स्टेट के विषय को अलाउ करेंगे तो हम लोग को उनकी I have not allowed. बहुत बोलने को है. हम हमारे पास I have not allowed. कर्नाटका टू केरला. I said I am not allowing. Yeah. ये नहीं होता है स्टेट का I am not allowed. Punia, sit down. Chaya Verma has not given notice. Not given notice. Now, Sri. What are you doing? See, I do not, sit down. I do not understand why you are fighting for. I have already said, now listen to me. I have already said, Mr. Please listen to me. Ali Muhammad Khan, I will be forced to take action. Every day you are doing this. You sit down. You are not saying that I am standing here and saying, that I know. You sit down. I know that. Mr. Punia, I told you, Punia, listen, I told you your notice 267 is not allowed. I already told. If you want to consider it, give some other notice. That will be examined. Sit down. Now, number 2, Pramod Tiwari, the same thing. Chaya Verma, there is no notice from Chaya Verma. I have not got here. Sit down. It is Chaya Verma, I have no notice. You can repeat the notice, whatever it is. Now, 0 hour submission. Sorry. Naresh Agarwal, yes. Naresh Agarwal, you are 267. What is that? स्टेट बैंक ने Tiwari spoke, so from the beginning you are speaking, nothing more will go on record. You cannot monopolize the whole house. Sit down. Chaya Verma, you have given no notice is with me. If you have given a notice, if it is not come, you can repeat the notice. Why do you show indiscipline? I am not talking to Punia. I told her. No. It is not with me. Okay. Punia. I told I got Punia's notice, but I said I am not allowing that. 267 I am not allowing. Sit down.
No. Sri Naresh Agarwal. माननीय सभापति जी, Tomorrow. Not here. Yes, Naresh Agarwal. Naresh Agarwal. स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर के अनुसार 1 करोड़ से नीचे का जो भी सेविंग बैंक अकाउंट खोलेगा उसका ब्याज का प्रतिशत 4% से घटा के 3.5% कर दिया। श्रीमन, आप देखिए विडंबना, इस देश में 99% लोग जो हैं उनका सेविंग खाता 1 करोड़ से कम है, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा वालों को तो 4% रखा, लेकिन 1 करोड़ से कम वालों का उन्होंने कम कर दिया। इसी तरह आप देखिए सीनियर सिटीजन और बेरोजगारों की जो स्कीम है, चाहे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, चाहे किसान विकास पत्र हो, सब में जिस तरीके से घटाते चले जा रहे हैं और लोनिंग में EMI कम करते चले जा रहे हैं, तो इस subject, yes, पैसा कहाँ से Naresh, लोग अपना पैसा this subject I am not allowing because the zero hour is already on that subject. He will also support. Derek will also support me. तो मैं कह रहा हूँ Naresh ji, ये विडंबना है। मैं चाहूंगा कि अगर वित्त मंत्री जी zero hour is also on that subject. वित्त मंत्री जी जवाब दे दें तो ज्यादा। I am not allowing 267 on this subject, but zero hour is allowed. So Derek O'Brien, I understood your subject. Derek will support. You can support Derek O'Brien, yes. Okay, now zero hour Derek O'Brien. तुम्हारा नंबर 1 Now zero hour Derek O'Brien. You can support Sri Naresh Agarwal also. I have no objection. Sir, I'm happy, sir. This is the first time I'm number 1 on zero hour. Thank you, sir. Sir. No need of thanking me. It is not my job. It comes sir, on. SBI have reduced. Sir, I'm glad the finance minister, leader of the house, is also here. Maybe he will give us a explanation. Sir, SBI reduced rates of savings on bank accounts holding a balance of less than 1 crore by 0.5%. So more than 90% of bank accounts in India are people who have less than 1 crore. So SBI, according to their explanation, have said that after demonetization, there was a huge inflow of funds. About 50,000 bank accounts were being opened every day. And about, these are SBI figures, they say 1.5 lakh crores have moved into the system, but there was no one who there were no borrowers in the system. Because after demonetization, there were no borrowers because economic activity was low. This is the SBI view. So what impact has this had? So the first impact is, the obvious impact, is that small depositors, especially the senior citizens, especially the pensioners, are all affected. Now, when they are affected, what would they do as alternatives? This is a surefire way of opening up and encouraging chit funds. Everyone talks about chit funds, but no one talks about Pearl Chit Fund. Let's have an investigation. How many people were investigated in Pearl Chit Fund, and which government and which people were involved, and what action was happening outside North Block in Delhi and in Punjab. It's very convenient to talk about Odisha and Bengal when it comes to chit funds. So this decision, sir, through you, I want to caution the government. This decision will also increase the infiltration, sir, of chit funds. Sir, and worse still, the commercial banks also are going to be affected. Sir, this fixed deposit, these rates for the fixed deposits, in 2014 early, the rate was 10%. I was talking to some senior relatives of mine, they were getting 10%, 9% till a few years ago. Now that is down to, sir, less than 6%. Sir, look at the jobs. Again, post-demonetization, 1.5 million jobs have been lost, we are saying, in the last 4 months. So now even the Niti Aayog vice chairman has now suddenly, we wish him luck in his new assignment, but no matter what the government tries to say, he has resigned after 3 years to move on. Sir, these are the big issues, post-GST, post-demonetization. The opposition have been trying to discuss these issues. The NPAs, 7 lakh crores of NPAs you still haven't recovered, and you're hurting the poor people. Sir, we need a discussion on this. The government is running away from a discussion. For 3 weeks we have given notices, sir. Please look into this. Take this all up right, and let us Honorable discuss. Finance, would you like to react? As Honorable Finance Minister. Now, he wants to react. Listen to him. Suni.
Please listen to Finance Minister after that. Please listen to Finance Minister after that. You first listen to the Minister. Sir, as far as the last point of Mr. Derek O'Brien is concerned, there is an amendment to the Banking Regulation Act substantially dealing with the NPA issue, which is currently being discussed in the Lok Sabha. It's likely to be taken up and completed today. Any day it will be before the Rajya Sabha, so you will get an opportunity to discuss the issue at that time. Please remember that you are talking about a time when inflation was 10 and 11%. The lending rates were high, and the sluggishness was setting in because of that. And therefore, when the lending rates go down, the borrowing rates also will obviously come down. These are all interconnected. And that is precisely why, to keep the fixed deposits at a rate at which it was, because those are not rates which have been touched. Those are the rates which affect the retired people and the pensioners the most. And this government, to take care of those senior citizens, for the first time has brought in a scheme of 8% guaranteed, which will not change. As far as the senior citizen's pension is concerned, the cumulative effect of that interest is actually 8.3%. I have already launched that scheme. The Prime Minister had announced it on the 31st of December, and if you have any person who's affected, they can take the benefit of that 8% scheme as far as fixed returns are concerned, with the LICs administering the scheme. Since the Finance Minister has brought this issue up, these are all issues related to post-demonetization and the rush out of GST. Let us have a full debate on this. Okay, give notice, we'll consider. Dr. Chandrapal Singh Yadav. It's a zero-hour discussion. No, we'll have discussion. Allow the House to proceed. We'll have discussion. Sir, Yeah. the first day of this session, we had given a notice as the combined opposition for a discussion on economic slowdown and job losses. We have given a notice on GST. None of the notices have been accepted. Sir, we have decided to take it up. Since you said give a notice, the notice is given from day one. No, GST we have already decided. You said not allowing the House to proceed. No, we are not. You are not allowing the House to run. We are not what is the saying point that. in giving a I am notice? just responding Allow this to- House to run from 11 to 6. All your discussions will take place. I am not. सदन आप चलने नहीं दे रहे और कह रहे हैं हमने अब तो नोटिस चलने दिया दे रहे है। हैं। नोटिस का लाभ क्या है जब सदन नहीं चलेगा तो? आप रिकॉर्ड भूल गए, आपने तो महीनों नहीं चलने दिया सेशन के सेशन। Anyhow, GST discussion will take place. Dr. Chandra Singh Yadav. Dr. Chandra Singh Yadav. माननीय उपसभापति महोदय, Dr. Chandra Singh Yadav. Sorry, Chandrapal Singh Yadav. Yes. No, आपका नोटिस नहीं है. अरे सुन लीजिए, कुछ कहना चाहते हैं। No, that cannot. That is against the rule. No, I am not allowing. That cannot be done. Dr. Chandrapal Singh. Now I will not listen to that. That will not go on record. No, you cannot. No, अगर आपको नोटिस देना हो तो दीजिए. अगर कल मिलना है तो चेयरमैन से मिलिए. अभी डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव. सर टाइम जो है No. टाइम डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव. सर टाइम काफी हो गया. यू शुरू करो. आप शुरू करो. आप क्यों नहीं बोलते? महोदय, मैं इस सम्माननीय सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान देश के विभिन्न सैन्य क्षेत्रों में उन तमाम ऐसे गांव की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि सैन्य छावनी के बीचों बीच स्थित हैं, जिसे वहां से हटाने के लिए सेना द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है। कुछ गांव की कृषि योग्य भूमि और मकान आदि की नाप आदि करके बरसों उपरांत मात्र जमीनों का, उनकी कृषि योग्य जमीनों का मुआवजा दिया गया है। उनके मकानों का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया और ऐसे लोग बेघर हो गए हैं। उनके रहने के लिए भी उनके पास स्थान नहीं है, ना ही उनके विस्थापन और जीविकोपार्जन जैसी किसी व्यवस्था के बारे में ध्यान दिया गया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के अंतर्गत बबीना कैंट के मध्य स्थित धमकन गांव का मामला प्रकाश में आया है। वहां के निवासी गण सेना द्वारा जमीन मकान अधिग्रहण किए जाने के बाद से विस्थापन एवं बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। वर्ष 1991 से आज तक उनके मकानों का मुआवजा नहीं दिया गया है।
सेना ने जमीन अधिग्रहण कर उसे यूनिटों के अधीन सुपुर्द कर दिया है, जिससे वहां के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जमीन नहीं रही तो जीविका का साधन भी नहीं रहा। घर नहीं रहे तो वहीं छावनी के आसपास ही अपने आश्रय से झोपड़पट्टियां बना करके लोग गुजर बसर कर रहे हैं। उनके मकानों का मुआवजा नहीं मिला। मैं आज आप लोगों के, मैं सदन के माध्यम से, क्योंकि माननीय रक्षा मंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गांव जो सैन्य छावनी क्षेत्र के बीच में स्थित हैं, उनके कारोबार के लिए उनकी कृषि योग्य जमीन नहीं रही, उनके रहने के लिए मकान नहीं रहे और उनको मकानों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उनका विस्थापन नहीं किया जा रहा है, ना ही उनको जो गारंटी थी रोजगार देने की दी गई थी, ना आज तक उनको रोजगार मिल पाया है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे धमकन गांव जिसका मैंने जिक्र किया है, उस गांव के लोगों को घरों का मुआवजा दिलाया जाए और उनके विस्थापन की व्यवस्था की जाए, उनके जीविकोपार्जन के लिए सरकार द्वारा प्रबंध किया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। सर मेरी विनती, एक मिनट सर। ये जो चंद्र ने उठाया है, जबलपुर में भी सबसे ज्यादा सुरक्षा कर्मचारी है, सबसे बड़ा कैंट एरिया है, वहाँ गांव में तबाही मची हुई है। ये बात ठीक कह रहे हैं, मैं इनका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। और ये जो लोग बसे हुए हजारों साल से, उनके बारे में, उनकी जमीन पे ही है, ये सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। श्रीमती काशन परवीन। बहुत बहुत शुक्रिया उपसभापति महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, हम सभी जानते हैं कि गंगा को राष्ट्र नदी का दर्जा प्राप्त है। इसके महत्व के बारे में बोलना सूरज को दिए दिखाने जैसा है। धार्मिक आस्था तो इससे जुड़ी हुई है, इससे जीवन दायिनी भी कहा गया है। इसके तट पर सभ्यता का विकास हुआ है। वर्तमान में बिहार राजगंगा में हर वर्ष में आने वाली बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त है। इसका कारण है इसमें गाद का जमा होना। गाद के जमाव से गंगा का स्तर काफ़ी मीटर ऊंचा हो गया है, जिससे सुचारू जल प्रवाह नहीं हो पाता और पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। बेवजह बहाव के कारण इससे काफ़ी स्थानों पर कटाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। भागलपुर के जिले के कई प्रखंडों में कई स्थानों पर भीषण कटाव हो रहा है। कई गांव वीरान हो चुके हैं। कमोबेश ऐसी हालत पूरे दियारा इलाके की है। यदि इसका उचित प्रबंधन नहीं किया गया तो 1-2 साल में भागलपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज भी इसकी चपेट में आ जाएगा। प्रत्येक वर्ष कटाव निरोधी कार्य में बोल्डर पिचिंग किया जाता है, लेकिन बाढ़ के इस कटाव के कारण सब उसी वर्ष कटकर गंगा में समाहित हो जाता है। इससे दोहरी क्षति होती है। एक तरफ धन की बर्बादी और दूसरी ओर गंगा में गाद की वृद्धि होती है। कई संगठन द्वारा इसके लिए फरक्का बैराज का निर्माण का कारण बताया जा रहा है, जो अब शत प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः फरक्का बैराज अपने सभी लक्ष्यों को पाने में विफल हो रहा है और साथ ही साथ इसका बुरा असर मछुआरा समाज पर भी पड़ रहा है। इसके कारण कई तरह की मछलियां आना बंद हो गई है और मछुआरे जो हैं, लाखों मछुआरे बेरोजगार हो गए हैं और भूखमरी के शिकार हो गए हैं। मेरी सरकार से ये मांग है कि तत्काल इस समस्या का समाधान किया जाए और इसके लिए जो भी तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो मुहैया कराई जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए बार बार मांग उठाई है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए और जो बाढ़ से तबाही हो रही है उससे बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती फातिमा जी, आपने जो सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है ये देश को समाजवाद नहीं राष्ट्रवाद की जरूरत, ये सब्जेक्ट है, 0 आवर का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं है परमिटेड। नो, मैंने नोटिस से पढ़ा, मैंने नोटिस से पढ़ा, नोटिस में इतना लिखा है, इसलिए ये सब्जेक्ट 0 आवर का नहीं है। मुझे बस अगर सब्जेक्ट बदल करके दूसरा नोटिस देने दो मुझे। नाउ श्री राजीव शुक्ला, सब्जेक्ट बदल करके दूसरा नोटिस देने दो। हाँ बोलिए। नाउ श्री राजीव शुक्ला, कल दे दो, दूसरा सब्जेक्ट दे दो। श्री राजीव शुक्ला। हाँ शांत रहो भाई, अरे राजीव शुक्ला को भी बोलने दो। नरेश भाई, बाकी लोगों को भी बोल लेने दो, बाकी लोगों को भी बोल लेने दो।
राजेश शुक्ला। सर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूँ, मुद्दा जो महिलाएं आजकल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रही हैं। आपको पता होगा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप के फाइनल तक पहुंची, लेकिन लगता है कि हमारा सचिवालय भूल गया और यहाँ से सदन जो हर बार बधाई देती थी, एक परंपरा थी, उनको बधाई भी नहीं दी गई, जबकि प्रधानमंत्री भी अपने कई संदेशों में ये बात बोली और पूरे देश ने उनका स्वागत किया, लेकिन हमारे सदन ने उनका स्वागत नहीं किया, वो अलग चीज़ है। लेकिन महिलाओं ने जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में स्पोर्ट्स में कमाल करके दिखाया है, उससे मेरा सरकार से आग्रह है कि महिलाओं को खेल में प्रोत्साहन के लिए विशेष नीति जो है खेल मंत्रालय को बनानी चाहिए। मैं कुछ नाम लूँगा। टेनिस में सानिया मिर्जा, आप जानते हैं किस तरह से विश्व स्तर पर छाई हुई हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन में, साबा अंजुम हॉकी में, मिथाली राज और हरमनप्रीत कौर ये क्रिकेट में, पीवी संधू और बैडमिंटन में, अरुणिमा सिन्हा वॉलीबॉल, फुटबॉल, और ये तो माउंट एवरेस्ट पे भी गई क्योंकि इनकी एक ट्रेन से इनको फेंक दिया गया था तो उनकी टांग कट गई थी और उसके बाद भी इसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की अरुणिमा सिन्हा ने। MC मैरी कॉम जानते हैं सदन में हमारे हैं, उन्होंने कितना बढ़िया जो है अपना परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड लेवल पे दिया है। हिना सिद्धू पिस्टल में, और गीता, बबीता, रितु एंड संगीता फोगट, और उसके अलावा साक्षी तंवर। आपने देखा होगा कि उन पे फिल्में सिर्फ बना के महिला कुश्ती पे सैकड़ों करोड़ रुपए जो है सलमान खान की फिल्म ने, सुल्तान ने कमाए, और दंगल में जो आमिर खान ने बनाई उसमें कमाए। मतलब इतना लोगों का, जनता का रिस्पांस उनके लिए इतना ज़बरदस्त था कि सैकड़ों करोड़, मतलब बॉक्स ऑफिस से सुपर हिट हुई दोनों फिल्में वहाँ पे। दीपिका पल्लिकल स्क्वैश में, शर्मिला निकोलेट गोल्फ में। तो महिलाएं तो हमने कुछ नाम लिए हैं, बाकी आप देखिए कि महिलाएं किस तरह हर क्षेत्र में खेल के बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कोई महिलाओं को प्रोत्साहन की नीति अभी तक सरकार ने नहीं बनाई है। खेल मंत्रालय वही साई पे सब कुछ छोड़ देता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे, जो इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाती है। अगर हम भारतीय महिलाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, जैसे मैं बता रहा हूँ कुश्ती में, आप देखिए हरियाणा की ज़्यादातर आ रही हैं, उनके लिए कोई वहाँ पे ढांचागत सुविधा नहीं है, कोई इस तरह के नहीं जहाँ उनकी ट्रेनिंग दी जाए या कुछ बनाया जाए। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप सरकार को इस मामले में आग्रह करें, सरकार के लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि महिलाओं को खेलों में प्रोत्साहन देने के लिए मैं अधिक से अधिक कोशिश की जाए। और मुझे लगता है ये ओलंपिक के तमाम मेडल्स ला सकती, क्योंकि पुरुष नहीं ला पा रहे हैं। 60 साल आपने ट्राई करके देख लिया, अब महिलाओं को भी अवसर दीजिए। मुझे लगता है निश्चित रूप से इस मामले में सफल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, yes, there is all-round support, the whole House agreed. Thank you for raising it. Now, Shri Amar Shankar Sable. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपसे माध्यम से सरकार का और पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुंबई में मनप्रीत नाम का एक लड़के ने मनप्रीत नाम के एक लड़के ने 7वें मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की है। ये मनप्रीत ये ब्लू व्हेल गेम खेल रहा था। लास्ट 50 डेज वो गेम खेलता रहा। इस ब्लू व्हेल गेम से अब तक रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली से 130 बच्चों ने खुदकुशी की है। उसका निर्माता फिलिप बेडकिन वो रशिया का है, उनको अभी जेल में रखा गया है। और ये ब्लू व्हेल गेम 50 दिन का होता है और उस गेम में उनको कुछ इंस्ट्रक्टर ऑर्डर देता है जागरण करना, हॉरर पिक्चर देखना, बिना टिकट रेलवे से प्रवास करना, ऐसे कुछ ऑर्डर देता है। 50 दिन वो बच्चा उस तरह से उनका बिहेव करता है और बाद में उस बच्चों को ऐसी ऑर्डर दी जाती है कि अब आप खुदकुशी कर दो और वो बच्चा खुदकुशी करता है। ऐसा इस देश में पहला बलि मनप्रीत मुंबई का है, उन्होंने जान गंवाई है। अभी इसके बारे में महाराष्ट्र के सदन में चर्चा हुई, चिंता व्यक्त की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उनके बारे में चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार को प्रार्थना की है। तो मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को प्रार्थना करता हूं कि ब्लू व्हेल गेम से
हमारी जो युवा पीढ़ी है उस खतरे में न आए, इसके लिए कुछ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। Yes, Sri Vigas Mahatma, you can associate one, all others' name will be added. You can associate 1 minute. Yeah. You can take 1 minute for association. अभी जो बताया उससे मैं सहमत हूँ, और उसमें सिर्फ ये गेम ही नहीं है ब्लू व्हेल, लेकिन जो भी ऑडियो वीडियो गेम्स हैं ये बहुत इंटरेक्टिव रहते हैं, और जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो फॉलो करने के बाद उनको रिवार्ड्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, और उनका रैंकिंग भी होता है। कभी कभी वो खुद पे इंजरी करो ऐसा बोलते हैं, तो बच्चे खुद पे इंजरीज भी करवा लेते हैं। यही गेम नहीं है, बाकी डोटा गेम है जहां वायलेंस पे रहता है पूरा बेसिस, और इसमें पॉइंट्स और रिवार्ड्स होने से डोपामिन सीक्रेट होके एक्साइटमेंट रहता है, और ये बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं। इसलिए डी एडिक्शन के लिए, वो आदत छूटने के लिए उनको साइकोलॉजिस्ट के तरफ पेरेंट्स को लेके जाना पड़ता है। इसके अलावा इसमें और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वैल्यू सिस्टम, नैतिक मूल्यों का भी प्रश्न है, क्योंकि इसमें मंदिर से आपने मूर्ति चुराई है, पुलिस आपके पीछे है, उससे आप कैसा छुटकारा पाएंगे? रियल का टिकट आपने निकाला नहीं है, इसलिए ये नैतिक मूल्यों का संजय सेठ 1 मिनट, संजय सेठ 1 मिनट, एजेंसीज इसमें आए बच्चों के मूल्यों का ह्रास हो रहा है, इसलिए इसके तरफ ध्यान देना जरूरी है। नो संजय सेठ नहीं है, बैठे सर, बैठे हैं सिटिंग सर। You 1 minute, Sanjay Seth, if you want in this. Yeah, you want to support this? Yeah. Okay. I want to support this. सर, ये जो वेल गेम चल रहा है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर जो असर आ रहा है, इसको रोकना चाहिए। हम लोगों को कोई ऐसा प्रोविजन लगाना चाहिए कि इस तरह की वेबसाइट, इस तरह के गेम्स सारे उससे हटे, साइट से हटे, जिससे ये बच्चे जो हैं ये अपनी जो आज के दिन में पढ़ाई लिखाई छोड़ के सारे गेम्स की तरफ जा रहे हैं, इसके ऊपर रोकना चाहिए। थैंक यू। श्री नरेश अग्रवाल। माननीय सभापति जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री अभी यहाँ बैठे हुए थे। इसके पहले भी हम लोगों ने ये बात उठाई थी कि जेनेरिक और नॉन जेनेरिक दवा दो हिस्से में जैसे देश में दवाओं को बांट दिया गया है, तो नॉन जेनेरिक दवाओं के रेट और जेनेरिक की दवाओं के रेट में इतना बड़ा अंतर है कि आम गरीब उसमें पिसता चला जा रहा है। मुझे खुशी है सरकार ने सर्कुलर जारी किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को जेनेरिक दवा लिखनी पड़ेगी। जेनेरिक और नॉन जेनेरिक में अगर जेनेरिक 1 रुपये टैबलेट, नॉन जेनेरिक 70-75 रुपये टैबलेट है, लेकिन डॉक्टर्स और जो केमिस्ट हैं वो दोनों मिलकर जिस तरीके से गरीबों को लूट रहे हैं। इसके पहले श्रीमन हमने नर्सिंग होम की बात उठाई थी। आप किसी नर्सिंग होम में चले जाएं, किसी डॉक्टर को दिखा दें, वो पहले इतनी जांचें लिख देगा कि आपकी घर बिकने भर का तो जांच में हो जाएगा। उसके बाद दवा, मैं कुछ हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इस देश में बड़े नामी हॉस्पिटल हैं, वहाँ आप अगर चले जाएं तो मिनिमम 1 लाख का बिल बनेगा। इससे कम बिल तो बन ही नहीं सकता अगर आप हॉस्पिटल में प्रवेश कर गए। और फिर दवाइयाँ, श्रीमन जेनेरिक दवाई सेम मैटर, सेम उसमें जो वो होता है साल्ट, सेम साल्ट है, लेकिन रेट इतना बड़ा अंतर और सरकार कुछ नहीं कर रही। आप एम्स में चले जाइए, एम्स के बाहर जितनी दुकानें हैं, डॉक्टर लिखेगा नाम कुछ, पेशेंट कह दे कि नाम की दवा है नहीं, वो केमिस्ट कह दे कि नाम की दवा है नहीं, वो आपको नॉन जेनेरिक दवा दे देगा। एक कास्ट आप कहते हैं कि लिखिए, क्या लिखें? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तो कोई पढ़ नहीं सकता केमिस्ट के अलावा, मरीज बेचारा क्या जाने। और ऐसा कौन मरीज, 90% मरीज उसी हॉस्पिटल के केमिस्ट की दवा लेते हैं या उसी हॉस्पिटल के बाहर की दवा लेते हैं। अभी सरकार ने अमेरिका के दवाओं में 127 दवा को जेनेरिक से नॉन जेनेरिक कर दिया। मेरा आरोप है, बिल्कुल निश्चित आरोप है कि अमेरिका के बड़े बड़े दवाई कंपनियों के दवाओं में सरकार ने 127 दवाओं को नॉन जेनेरिक कर दिया और देश के लिए लूटने का उनको आज़ादी दे दी। आज लूटने की आज़ादी है। वो दवाओं का इतना एडवर्टीजमेंट होता है कि आदमी जानता है यही दवा बिकती है, उसको पता नहीं है कि जेनेरिक दवा है क्या। और जेनेरिक औषधालयों को सरकार मदद नहीं कर रही, इस मारे जेनेरिक दवा बनती नहीं है, किसी अस्पताल में दवाएं उपलब्ध नहीं है। ये तो एक तरीके से लूट है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी चले गए, मैं चाहूँगा कहीं ना कहीं बंदिश लगना चाहिए। हिंदुस्तान में स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा, 2% सिर्फ हमारा बजट हेल्थ पे खर्च हो रहा है, जबकि विश्व के और देशों में इंश्योरेंस पॉलिसी, बजट, सारा हेल्थ का खर्चा सरकार वहन करती, लेकिन हमारे देश में क्या है?
गरीब बीमार पड़ जाए, उसका घर बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा, गरीब बिल्कुल गरीब हो जाएगा। All right, मेरा you are correct. सरकार को कोई Yeah, I think yes. Nakvi please. Sir, honorable नरेश अग्रवाल जी ने बात कही, सारा देश इस बात से सहमत है कि जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको सस्ती दवाएं मिलनी चाहिए। और जब हमारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री जी ने जो पहला काम किया कि गांव-गांव में उन क्षेत्रों में जहां पर कि ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, जन औषधि केंद्र खोले हैं और हज़ारों की संख्या में खोले गए और उसको बढ़ाया जाएगा। जहां तक सवाल है जिन मुद्दों की बात नरेश जी ने करी, निश्चित तौर से जो आपकी चिंता है वो हमारी भी चिंता है कि जो गरीब है, जो कमज़ोर तबका है, उसको सस्ते दाम पर और अच्छी दवा और सुलभ तरीके से मिले, उसके लिए व्यवस्था हो रही। जो और विषय है उस बारे में हम जो संबंधित मंत्री हैं उनको बताएंगे। ये है स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो सदन को इग्नोर करके चले गए। अच्छा, अभी बैठे हुए थे, जानबूझ के इग्नोर किया सदन को। अच्छा नाकवी जी, आई थिंक यस द सब्जेक्ट इज सीरियस। हमें आपकी हेल्थ के बारे में मालूम है हम आपकी हेल्थ की चिंता भी है हमें और देश के हेल्थ की भी चिंता है। ओके बैठिए, आप बैठिए। आई थिंक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर should bring this issue to the notice of the health minister because it's a matter serious. Okay, Sri Ali Anwar Ansari. Just a minute. It is not merely a health ministry, but also the Ministry of Fertilizer and so far as the production of medicine, it is in their under their ministry, and it is they who declare the list of essential medicines and generic, non-generic. It is done from that ministry only. Okay, Nakvi ji, take note of that. Whatever All right, Janaushadhi Sri is not Ali working Anwar at all for the Ansari. country. Ali Anwar Ansari. महोदय, यह चिंता की बात है कि पत्रकारिता और जनसंचार के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान IIMC दिल्ली में वर्तमान प्रशासन संकाय सदस्यों के साथ बिना किसी विचार विमर्श और चर्चा के मनमाने फैसले कर रहा है, जिससे शैक्षणिक संस्थानों के नियमों, परंपराओं और मूल्यों को खुलेआम नजरअंदाज किया जा रहा है। संस्थान में तदर्थवाद और तानाशाही हावी है। छात्रों, कर्मचारियों से लेकर संकाय के सदस्यों को डराया धमकाया जा रहा है। चुप न रहने की कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। पिछले अकादमिक सत्र में एक छात्र को एक न्यूज वेबसाइट पर संस्थान के तौर तरीकों की आलोचना के लिए निलंबित कर दिया गया और 4 छात्रों को सोशल मीडिया पर लिखने के लिए चेतावनी दी गई। क्या एक पत्रकारिता संस्थान में भी छात्रों को स्वतंत्र रूप से बोलने लिखने की आज़ादी नहीं होगी? यही नहीं, पिछले 2 महीने में एक महिला संकाय सदस्य को रेडियो और टीवी पत्रकारिता विभाग की प्रमुख थी, उन्हें बिना कारण बताए पद से हटा दिया गया और इसी तरह अंग्रेजी पत्रकारिता विभाग के प्रमुख मनमाने तरीके से डेकनाल तबादला कर दिया गया, जबकि वे सिर्फ 8 महीने में रिटायर होने वाले हैं। बिना किसी चर्चा के एक तरफा पुरुष छात्रावास को बंद कर दिया गया है। पुरुष छात्रावास को बंद कर दिया गया है, लड़कों के छात्रावास को। ऐसे ही संस्थान परिसर में बिना किसी सलाह मशवरे के मोबाइल टावर लगाने की अनुमति दे दी गई, जबकि कक्षाओं और लाइब्रेरी से उनकी दूरी 25 मीटर से भी कम है और इसका कुप्रभाव छात्रों, कर्मचारियों और अध्यापकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। संस्थान में मनमाने तरीके से विभाग बनाए जा रहे हैं, उन पर तदर्थ नियुक्तियां की जा रही है एक खास विचार के लोगों को, लेकिन संस्थान की कार्यकारी परिषद में स्वीकृति के बावजूद अभी तक विद्वत परिषद एकेडमिक काउंसिल का गठन नहीं किया गया है और न ही संकाय सदस्यों की प्रोन्नति स्कीम लागू की गई है। संस्थान के महानिदेशक ने सदस्यों से मिलने तक के लिए तैयार नहीं है, उनकी सुनवाई तो दूर की बात है। चिंता की बात यह भी है कि संस्थान में नया सत्र 1 अगस्त से शुरू होने वाला है, लेकिन पिछले 2 महीनों से संस्थान में इसकी तैयारी के सिलसिले में संकाय सदस्यों की कोई बैठक नहीं हुई है। पाठ्यक्रम के संशोधन की प्रक्रिया ठप है, पिछले सत्र के नतीजे नहीं आए हैं। इन सब कारणों से स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि संस्थान की नई दिल्ली शाखा में कुल 11 पूर्णकालिक सदस्य, फैकल्टी मेंबर सदस्यों में से 8 अध्यापकों ने महानिदेशक को लिख कर दिया है कि मौजूदा घुटन माहौल में उनके लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है। इस कारण उन्हें अध्यापन, प्रशिक्षण, शोध, प्रकाशन से इतर सभी
प्रशासनिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए, ऐसा 8 फैकल्टी मेंबर्स ने लिख कर दे दिया है। यह साफ तौर पर मौजूदा महानिदेशक के अलोकतांत्रिक तदर्थवादी मनमाने रवैये को विरुद्ध में शंकाएं। दिलीप कुमार तिर्की, टाइम ओवर। दिलीप कुमार तिर्की क्या करें, बट अच्छा सब्जेक्ट, बैठिए। दिलीप कुमार तिर्की। थैंक यू महोदय। दिलीप कुमार तिर्की। मैं सदन का माध्यम से सरकार को ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लाना चाह रहा हूँ। महोदय, उड़ीसा का कोस्ट लाइन काफ़ी बड़ा है और इसके कारण वहाँ अक्सर नेचुरल क्लाइमेट आते रहता है। इसके कारण हमारे उड़ीसा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे उड़ीसा सरकार ने 25 लाख किसानों के लिए प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना के तहत रजिस्टर करने के लिए बहुत बड़ा मुहिम, बहुत बड़ा अभियान चला रही है। किसानों के रजिस्ट्रेशन का काम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन महोदय सेंट्रल क्रॉप्स इंश्योरेंस पोर्टल में टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से वहाँ काम बंद हो गया है। लिंक फेल हो जाने के कारण लाखों फार्मर्स टाइम पर प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना में अपने रजिस्टर नहीं कर सके हैं। इतना ही नहीं कि उस समय जो ऑफलाइन रजिस्टर भी नहीं कर पाए हैं। इसके कारण किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी है और सिस्टम फेलियर होने के कारण कहीं लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम उनको झेलना पड़ा है। महोदय, इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि किसानों के रजिस्ट्रेशन का जो कट ऑफ डेट को 16 अगस्त 2070 तक बढ़ाया जाए और उनके हितों की रक्षा की जाए। धन्यवाद। थैंक यू श्री अहमद हसन। श्रीमती विजया सत्यनाथ। Sir, there was a massive demonstration with the participation of 1 lakh BD workers to reduce the 28% GST tax levied on the BD industry. More than 5 lakh BD workers are living in Tamil Nadu, and out of them 90% are living in my district, Tirunelveli. The families of those, there are about 5 lakh families who are wholly depending on the income of BD rolling. Mainly they are from the drought hit areas and their income is meager, only rupees 100 to 200 per day. Already BD industry is severely affected due to many restrictions and laws like ban on smoking in public place, ban on advertisement, 85% level danger symbol on the label pasted in the BD roll. So many hardships. In spite of that, BD workers, they get 4 to 5 days work alone in a week. And at this juncture, on the concept of one tax throughout India, 28% GST has been imposed on the BD industry. At present, 17% levied, including excise tax, welfare tax, and value-added tax by the state government. Out of the excise duty, 2.88% levied before. Out of that, 0.88% was spent for the BD workers' WARD scholarships. And so far, 2015-16, 2016-17, the 2 academic years, the BD workers' WARD scholarships have not been given to the students of the poor workers, women, all are women. Mostly the BD rolling is done by women. So they are 5 lakh families because most of them, they are the only breadwinners in their home. So there are 5 lakh families who depend on this income. Due to this, the producers now, what happens? The raw materials of BD, the BD leaves and tobacco powder are also taxed 18% under GST. Due to this, the producers will raise the BD price to double the rate in the market.
It will lead to reduction in sales of BD. When there is reduction in sales, the BD industry are compelled to reduce the production. If the production is reduced, BD workers' job will be reduced substantially. Net result, the workers will lose their income. So I would like to know from the government whether the GST will be fixed as before. 28%, they want to reduce it to the 17% which was levied before. Actually, this yields Time over. Srimati Kanimozhi. महिलाएं बच्चे काम करते हैं, टीबी के शिकार हो रहे हैं और मजबूरी में अपना पेट भरने के लिए Time over, not Srimati Kanimozhi. हमको करना इस ऐसे लोगों के साथ ये व्यवहार. Thank you, sir. The Ennur Creek in North Chennai spreads over 8,000 acres. It drains Araniyar and Kosasthalayar into the Bay of Bengal. And there are thousands of fishermen families which depend on this creek. It was once a lush mangrove forest. Under the CRZ notification, 6,500 acres of this creek was declared as no development zone in 1996. But despite that, there are industrial installations which have come up encroaching around 1,090 acres of the protected wetland. In 2015, these structures block the rainwater from going to the sea and cause flooding in areas which have never before experienced floods in Chennai. Apart from this, the North Chennai Thermal Power Station has been dumping fly ash into the Ennur Creek. Around 300 acres has been dumped with fly ash. For a question which I had raised about this, the minister had replied saying that to protect the wetlands from pollution and encroachments, there'll be an implementation of an integrated scheme of National Plan for the Conservation of Aquatic Ecosystems and notification of the wetlands. And also that the state governments will be advised to prioritize the protection of these wetlands. But the Kamarajar Port, which is very close to this Ennur Creek, is now trying to build car parking, coal yards and warehouse facilities in 1,000 acres of the creek by filling it. Already it has been taken, 1,000 acres has been taken away, another 1,000 acres the Kamarajar Port wants to extend into the creek and make it into real estate land. And to facilitate this, the Tamil Nadu Environment Department has created a new map which is being contested by many people, denying the existence of 8,000 acres of the creek. This map shows no creek at all. And this is what the Kamarajar Port is trying to use. If the creek is compromised any further and there is a flood in Chennai, nothing can save Chennai. I urge the Ministry of Environment as well as the Ministry of Road Transport and Shipping to ensure that the creek is not disturbed and the port's expansion should be carried out on dry land. And it should make sure that all clearances are used by the government-approved maps. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, all the supporters will be ordered. Sri A.V. Swami. A.V. Swami. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to talk on a subject which is nearest to my heart. The perception of tribals on Quit India movement was very different from what we had. Their perception was, if the British quits India, the landlords, the Maharajas and others who are there, who have usurped our forests, our lands, and our privileges, would be easy to throw them out. And therefore, they joined the Quit India movement in such a large numbers, where I also had a good opportunity of joining and helping the freedom fighters as a member of the Vanar Sena in 1942. Sir, this Act, tribals' protection on their lands and forests, Forest Rights Act, is almost the near fulfillment of their dreams of what they thought about Gram Swaraj. They said, if India becomes free,
We will remove the Rajas and all that. Lands will belong to us. We will have our own natural resources and will have what Gandhiji is telling as Gram Swaraj. That was the perception. Sir, after the Land Rights Act for the tribals has been passed, there was also another act that has come into force, is the compensatory forest afforestation project. That one, the post-independent era, the most significant law passed by India for them was Forest Rights Act. The particular established historical step, in a way, is being molded by compensatory forest afforestation fund management and the planning authority, CAMPA what it is known. Failure to do this would amount to shattering their pre-independence aspirations for rebuilding their community with full ownership on natural resources and their management. 1 year has passed since the enactment of compensatory forest act. The fund has been widely opposed by forest-dwelling communities and civil society organizations as it does not comply with Time over. Time over. Now, Dr. Sahasrabuddhe. Dr. Sahasrabuddhe. Thank you, sir. Thank you. सर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन का ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं। सर, हमारे देश में दलितों के बारे में कई बार इस सदन में चर्चा हुई, उनके ऊपर अत्याचार के बारे में, मगर अब हम एक नया स्वरूप देख रहे हैं कि केवल दलितों पर नहीं, अनटचेबल्स पर नहीं, मगर आइडियोलॉजिकल अनटचेबल्स पर भी बहुत बेरहमी से अन्याय और अत्याचार हो रहा है। सर, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। सीपीआई के हमारे सदस्य यहाँ पर है, उनकी एक काउंसिलर है केरला में, ग्राम पंचायत की मेंबर है इजुकोने में, उनका नाम है के श्रीलता, और उनको मैनहैंडल किया गया, जेसीबी के माध्यम से उनको कुचलने की कोशिश हुई। केवल इतना ही नहीं महोदय, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े 4 दलित कार्यकर्ता, श्री बी विष्णु जो 19 उम्र के हैं, युवा हैं, और 7 अक्टूबर 2016 को त्रिवेंद्रम में उनको बेरहमी से मारा गया, उनकी हत्या की गई। श्री केडी अनिल कुमार 19 दिसंबर को फिर एक बार त्रिवेंद्रम में, अनिल कुमार जी तो एक दलित युवा नेता है, उनका केवल अपराध यह है कि वो आरएसएस और बीजेपी का झंडा लेकर केरल में घूमते हैं, उनको मारा गया, उनकी दिन दहाड़े हत्या की गई। 12 फरवरी 2017 को पीबी निर्मल त्रिशूर में, अरे मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ, पीबी त्रिशूर में निर्मल जी की हत्या हो गई, वो भी युवा थे। और सबसे महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संरक्षण देना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है, एक युवा है 34 साल के श्री राजेश, वो त्रिवेंद्रम में एडा कोडे में महोदय वो जा रहे रास्ते से मारा गया, उनके हाथ काटे गए, दोनों हाथ काटे गए महोदय, और खून में लथपथाते हुए उनको छोड़ा गया और उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन दिया। हमारे देश के दलितों को Let me understand it. Sit down. अरे भाइयों, you are not member. आनी चाहिए, आप चुप बैठ रहे हैं। Why are you doing this? उनकी हत्या को When you are not member, speak. What is this? ये मानवता के अरे you are not member are objective. अपराध है महोदय। What is this? Sit down. जो आइडियोलॉजिकल अनटचेबिलिटी का रास्ता अपना रहे हैं, 40 कांग्रेस I will go through the record. If anything objection, I will explain. मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को मारा, एसपीडीआई के 3 कार्यकर्ताओं को You listen to this. दामोदरन हमारे सीपीआई के, उनको भी मार गिराया, और इस तरीके से लगभग 7 केसेस आइडियोलॉजिकल अनटचेबिलिटी के ऊपर अत्याचार किए गए। केवल Without listening, how can you reply? आरएसएस और बीजेपी के साथ है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संरक्षण देना चाहिए, ये बीच में नहीं बोल सकते। आप बोलिए, इनको बीच में नहीं बोलने देना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज त्रिवेंद्रम में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के लोगों को एसएफआई के लोगों ने कुचलाया, मारा। Don't make allegation. सुभाष सुधाकर, बाबू, allegation if any I will expense. Don't make allegation. Allegation if any I will expense.
Don't. I will expunge any allegation. Sit down. Any allegation, I will expunge. Sit down. Sit down. Sit down. सर ये बहुत गंभीर मुद्दा है. It's a very important and very serious issue. Definitely the state government should take a strong and Time over. action.